Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we completed the topic of nuclei. We studied what kind of questions were asked in the previous examinations और हमने ये anticipate किया था what kind of questions can be asked in this year's examination. So today what we're going to do is we're going to move on to the next chapter. The name of the next chapter as mentioned in your NEET syllabus is that of electronic devices. In electronic devices में क्या है हम cover करने वाले हैं topic of semiconductor diodes, IV characteristics and forward biasing of the reverse bias. And then we have diode as a rectifier, IV characteristics of LED, photodiode, solar cell, Zener diode as a voltage regulator, and finally we're gonna complete this chapter with logic gates. Okay, so this chapter is quite easy. चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है बट दिस चैप्टर रिक्वायर्स सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको वो है तो ठीक है, बट इस चैप्टर में बस ऐसा है कि चैप्टर इज बिट लेंथी एंड this chapter is quite theoretical. कुछ there are some topics which are not specifically mentioned in your syllabus but they form a part of semiconductors, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, there is no way around, you have to do those topics. वो topics क्या है मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, so the first thing which we're gonna start today is that is the topic of semiconductors. हम शुरू करने वाले हैं with the topic of semiconductors. ठीक है, now before we start the topic of semiconductors we need to understand what is the meaning of semiconductor, or rather we should say कि हमें ये पता होना चाहिए कि what are semiconductors. ठीक है, so as we already know on the basis of resistivity, on the basis of conductivity, solids can be divided into solids can be classified as, किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. तो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज metallic conductors, these can be insulators, and these can be semiconductors. These are the basis of this classification is based on the topic of conductivity, and let us denote conductivity by sigma. ठीक है, so here sigma is very high. In metallic conductors में क्या होता है, in metallic conductors sigma is very high. ठीक है, in insulators sigma is low, whereas in semiconductor sigma for semiconductors lies between conductors and insulators. That means conductors sigma, insulators. That means conductivity is lying between conductors and insulators, and if that is the situation we have a semiconductor. ठीक है, इतनी सी बात हो गई. Now we can further classify the semiconductors into different categories. These may semiconductors can be further classified as elemental semiconductors and compound semiconductors. Elemental semiconductors or compound semiconductors. ठीक है, तो जो elemental semiconductors होते हैं, these are the semiconductors which are available in their natural form. These are the semiconductors which are available in their natural form, or rather we should say that they are available in their elemental form. और इसके examples कौन से होते हैं? Examples are silicon and germanium. ठीक है, similarly the compound semiconductors can further be classified into three different categories. These can be, for example, these can be inorganic. In inorganic semiconductors we have this one and an alloy of germanium arsenide. Then we have organic semiconductors. जो organic semiconductors होते हैं, these can be, example of these are anthracene, etc. And further these can be organic polymer semiconductor. These can be organic polymer semiconductors. An example for these are polypyrrole, etc.
ठीक है। सो ये मैंने आपको क्यों करवाया, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन दे कैन सिंपली आस्क यू कि अब आपको एक एग्जांपल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग is a, for example, he can simply ask you which of the following is an organic semiconductor. So you have to have the basic understanding of semiconductors, and you must remember the examples along with the classification. So if you have this basic knowledge only, then you will be able to attempt this question. So this is the reason why मैंने आपको ये चीज यहाँ पे करवा दी, and यही चीजें आपकी रेफरेंस बुक में भी लिखी हैं. So let me write here, please refer to your reference book. Refer to your reference book. ठीक है. सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस चैप्टर इज हाईली थ्योरेटिकल. इस चैप्टर में अगर आप थ्योरी को अच्छे से नहीं करेंगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग योर असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ हाईली थ्योरेटिकल चैप्टर. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी bands of solids. ठीक है. Now I don't know which institution you are studying in. ठीक है. But in most of the institutions में क्या होता है, the teachers have been instructed कि आपको ये टॉपिक ना करवाया जाए. ठीक है. But I am telling you this topic is very important because although the question have never been asked from this topic, ठीक है, but there is a high chance कि जिस तरह से पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, the way the NEET examination is evolving, so there is a high chance the question can be asked from this topic. ठीक है. Although टीचर्स ये टॉपिक नहीं करवाते हैं, बट मुझे पता है कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि since the pattern of NEET is evolving day by day, every year tricky questions are being asked, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी. so this is a very important topic. most of the institutions में again I'm repeating ये चीज नहीं करवाई जाती है, but I will be teaching you this thing because I personally feel like this is a very important topic, and if you don't have the basic understanding of this topic, you won't be able to understand what is the meaning of semiconductors or how these semiconductors functions. ठीक है. because here we will be see the formation of conduction band and valence band. ठीक है. तो दिस इज द डायग्राम. प्लीज मेक श्योर यू सी दिस डायग्राम इन योर रेफरेंस बुक. इस चीज को आप याद रखिएगा. मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ, प्लीज रेफर टू योर रेफरेंस बुक. ठीक है. सो दिस टॉपिक इज हाईली थ्योरेटिकल. ठीक है. तो मैं आपको यहाँ पे आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड की चीज किस तरह से काम करती है एंड हाउ दिस थिंग फंक्शंस. ठीक है. सो अब आपको समझना पड़ेगा. सो दिस इज द डायग्राम बिटवीन द एनर्जी एंड द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग. ठीक है. इसके बीच में हमने डायग्राम को प्लॉट किया हुआ. ठीक है. सो बिफोर वी मूव टू डायग्राम, बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम, हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट गो बैक और थोड़ा सा हमको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ के आए थे. ठीक है. तो इन द बोहर्स थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि हमने बोहर्स थ्योरी में ये पढ़ा था कि द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड व्हाट वी कॉल दैट the concept of electronic configuration. ठीक है. We have already discussed this thing in Bohr spectra, that the atomic spectra and the concept of electronic spectrum. ठीक है. The electrons of an isolated atoms have certain discrete amount of energy corresponding to different shells and subshells. ये बात हम पढ़ के आए कि हर शेल और हर सबशेल की according to the Bohr theory will have definite amount of energy, and वो शेल क्या होता है, द नंबर ऑफ द शेल इज एंगुलर मोमेंटम. वहाँ पे सिचुएशन कौन सी फॉलो होती है, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल h over 2 pi. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है. सो अब हमें पता है कि एवरी एटम के पास क्या होगा, एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम हैव अ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट शेल्स. ठीक है. मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू बोहर्स. जो मैं कह रहा हूँ वो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, according to Bohr's theory. ठीक है. Let me just write this thing here. The electrons in an isolated atom, the electrons in an isolated atoms have certain definite amount of discrete amount of energy associated with it, and वो
एनर्जी दी कैसे जाती है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग. एग्जांपल, द एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये चीज हम पढ़ के आए हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ आइडिया कैसा सा होता है. ठीक है, सो यू दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आइसोलेटेड एटम. ठीक है, आप समझिएगा इसका. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. होता क्या है? ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट we have two atoms. Let's just suppose that we have two atoms. Let's just say this is your atom number A and here we have the atom number B. ठीक है, now each atom, let's just suppose we take an atom A. Each atom will contain n number of electrons. ठीक है, which will be decided by its atomic number कि कितने उसमें electrons contained है. So we are assuming that each atom will contain n number of electrons. ठीक है, similarly the atom B will also contain a certain number of electrons. Let us suppose that it contains n dash number of electrons. ठीक है, every atom is having certain amount of electrons. अब है क्या कि when they are separated by a large distance, when the distance between them is large, तब क्या होता है? when the distance between them is large, then the atoms, or rather I should say the electrons of atom A do not affect the electrons of atom B and vice versa. ना electrons of atom A B को affect करते हैं, ना electrons of B A को affect करते हैं. There is no interaction between them when they are very far apart. ठीक है, कोई इंटरेक्शन के बीच में नहीं है. बट होता क्या है? What happens? अब होता क्या है कि when the distance between them is reduced, let's just say here we have A and here we have B. Let's just say here we have distance R1. Then what we do is we reduce the distance. Let's just say distance is R2. And again we reduce the distance much more and here we assume that distance is R3 and distances are in a factor such that R1 is greater than R2 is greater than R3. ठीक है, तो होता क्या है कि जब the distance between them is reduced, then what happens, the electrons of these individual atoms will start to interact between themselves. वो electrons क्या करेंगे? अब these isolated atoms क्या करेंगे? वो एक दूसरे से interaction शुरू कर देंगे. ठीक है, they will try to interact with each other, they will try to influence each other. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. यहाँ पे दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे मैं आपके लिए चीज यहाँ लिख देता हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, when distance between isolated atoms is reduced, then what happens? Then they begin to influence each other. यही चीज मैंने आपको कही. They begin to influence each other. एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, नाउ व्हाट हैपेंस, इसकी वजह से क्या होता है? द मोमेंट दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, उस वजह से क्या होगा? ठीक है, द मोमेंट दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, इस वजह से क्या होता है? इस वजह से ये होता है ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन. ठीक है, इस वजह से क्या होता है? देयर इज ड्यू टू इस इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है? देयर इज अ मॉडिफिकेशन in case of energy levels of outer shell electrons. क्या कहने का मतलब क्या है कि when the distance between them is reduced, these atoms try to influence each other. अब influence जब शुरू हो जाता है, they try to influence the electrons that are present in the outer shells of these atoms. तो इस वजह से क्या होगा? There is a modification in case of energy levels of outer shell electrons. तो यानी कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के क्या है? एनर्जी लेवल क्या करना शुरू हो जाएंगे? वो चेंज करना शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, बट देयर इज अ कैच. But here's a catch. You have to understand this thing. This modification in energy levels, ये जो modification होती है in the energy levels, this takes place only for outer
outer shell electrons but not the inner shell electrons. क्या मतलब है इस बात का कि this means that this implies that only outer shell electrons are influenced. ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. व्हाट हैपेंस इज व्हेन टू एटम्स आर at very large distance from each other, then they do not influence each other. But the moment we go on reducing the distance between them, when जब उसके बीच का distance हम reduce करना शुरू कर देते हैं, they try to influence each other. As a result, the energy levels of outer shell electrons goes on changing. The catch here is the energy levels. These energy levels of only outer shells are changed. उन्हीं में changes आएंगे. The inner shells are unaffected. Inner shells में कोई भी change नहीं आता. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. Inner shell में कोई भी change नहीं आता. The only changes in energy level takes place is in the case of outer shell electrons. ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है? ओनली आउटर शेल्स आर अफेक्टेड. व्हाई? ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लिख देता हूं, दिस हैपेंस बिकॉज ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड between the atoms. It is only the outer electrons that are shared between the atoms of a crystal. ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपके लिए. नाउ वी विल डू इज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ये डायग्राम है आपको क्या बोल रहा है. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, जरा इस डायग्राम को समझने के लिए लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स डू नॉट टीच दिस टॉपिक, बट एज द पैटर्न ऑफ द पेपर इज इवॉल्विंग, आई एम वेरी मच होपफुल कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा, चाहे वो इस साल आए चाहे अगले साल आए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी कि हाउ दिस एनर्जी लेवल्स आर अफेक्टेड, in order to understand this theory how these electrons are energy levels are affected, let us consider a single silicon or germanium crystal, meaning we are taking either silicon or we are taking germanium crystal that contains n atoms. ठीक है, I hope this is something which is clear to you. So in order to understand this thing, let us assume we are taking the crystal of silicon. ठीक है, we are assuming that we are taking the crystal of silicon or germanium. Now from our basic understanding of chemistry, we know that the electronic configuration of silicon and we know the electronic configuration of germanium. ठीक है, so what is the electronic configuration of silicon? The electronic configuration of silicon is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14. ठीक है, सिमिलरली फॉर जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 32. तो जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 and 4p2. क्लियर होगी बात? दोनों केसेस में, इन बोथ दिस केसेस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इन बोथ दिस केसेस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर in a single atom. In a number of cases, the valence electrons in a single atom have how many valence electrons? They have 4 valence electrons. 4 valence electrons in one atom. Similarly, here we have
4 valence electrons in one atom. Clear हो गई इस बात? I hope this is something which is clear to you. ठीक है, this implies that since we have n atoms, हमें कैसे पता? Because we are assuming that we are dealing with n atoms. Since we have n atoms, this implies that total number of valence electrons, this implies that total number of valence electrons in silicon is equal to 4n, and total number of valence electrons in germanium is equal to 4n. क्लियर हो गई इतनी सी बात? 4n and 4n क्यों आया 4n 4n? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इन द एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू कि इसमें इफ दे हैव एन एटम हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4n. ठीक है, एक एटम में 4 हैं, एन एटम में कितने होंगे? 4n होंगे. ठीक है, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? सिमिलरली वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट, टोटल number of electrons in outer orbits of silicon or germanium can be कितने हो सकते हैं? In the total number of valence electrons in the outer orbits of silicon or germanium atom can be 8. कितने हो सकते हैं? 8. कैसे? Because 2s plus 6p electrons, यही है. इस तरह से आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 4n valence electrons have 8n energy states available to them. ठीक है, अवेलेबल टू देम. ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. इन द एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू. ठीक है, फॉर एनी एटम कितनी एनर्जी स्टेट्स आपके पास अवेलेबल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन केस ऑफ पर्टिकुलर एटम, तो वो आपको निकालने आना चाहिए. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस थिंग. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, क्वेश्चंस हैव नॉट बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द बेसिक कोर. दिस is the basic core of semiconductors, क्योंकि आप यहाँ समझते हो how the valence band and conduction band are created in case of a semiconductor. ठीक है, क्लियर हो गई तीसरी बात? ठीक है, अब जरा सा हम इस डायग्राम पे चलते हैं. लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम कि ये डायग्राम आपको क्या बोल रहा है. ठीक है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि ये डायग्राम आपको क्या बोलता है. ठीक है, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम है, इस बात की हम बात करने वाले हैं. ठीक है, and this is for silicon. germanium के लिए भी इसी तरह से function करेगा, and but right now we are dealing only with this silicon. Now we know that the configuration for silicon क्या है? We know that the configuration for silicon is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, sorry it's 14 no, and 3p2. This is your electronic configuration for silicon. And so what we did is we plotted the diagram between the energy level and interatomic spacing. ठीक है, तो silicon के केस में this is your 1s level, this is your 2s level, this is your 2p level, 3s level and 3p level. I hope ये बात आपके लिए क्लियर हो गई. ठीक है, क्लियर होगी बात. नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग फंक्शंस. उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता दूंगा कि क्या चीजें हमने पढ़ी. ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी गोना डू इज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि व्हेन टू एटम्स ऑफ सिलिकॉन या अपन टू एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर substance are brought together, the outer shell electrons they try to influence each other. ठीक है, so in case of silicon, these is your outer shell electrons, these are your outer shell electrons. So when these atoms are, when two different silicon atoms will be brought together, these valence electrons they will interact with each other. As a result, the energy levels of these valence electrons, as a result, the energy levels of these valence electrons will be affected. ठीक है, and this is something which is happening here.
ठीक है। तो जब हमने इनको ग्राफ को प्लॉट किया, सिंस दीज आर द इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड दिस इज हाउ वी कैन सी दिस थिंग कि आपका डिस्टेंस के साथ इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इनमें एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देयर एनर्जी लेवल्स आर नॉट चेंजिंग, उनके एनर्जी लेवल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दीज आर इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स आर अनइफेक्टेड व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर, ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ सिंस दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज विल बी अफेक्टेड व्हेन एटम्स विल बी ब्रॉट टू ईच अदर बिकॉज दे विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है। तो क्योंकि वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, सो these two shells will, sorry, these two energy levels will interact each other, these will be disturbed, ठीक है। तो यही होगा। So let us assume that कि interaction किस तरह से होगी, ठीक है। In the first case, let us assume that the interatomic spaces between the silicon atoms is very large, meaning कि when R is very large, when R is large मतलब जब दो एटम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, when R is very large, ठीक है। So what happens when R is large? When R is large, you need to understand this thing. There is no interatomic interaction between them. When R is large, there is no interatomic interaction between the crystals of an atom. ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है? When there is no interaction between the crystals of an atom, each atom of the crystal behaves as a free atom. ऐसा ही होगा because they are not interacting with each other, so this means that they can have their individuality, then each atom in a crystal will behave as a free atom की तरह वो behave करेगा, उस पर किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। In this situation the an atom have their own identical energy levels, ठीक है। हर एटम का अपना एक identical energy level होगा which is sharp, discrete and distinct। So एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछेगा? Examination में the NEET can ask you, the NTA can ask you, they can simply ask you when the two atoms are infinite distance apart, are at a very large distance from each other, then which among the following statements are correct? तो कैसे बोलेगा? तो आपको बोलेगा कि each atom of the crystal behaves as a free atom. Is this statement true? Yes, this statement is true. Then they can ask you the energy levels are discrete, sharp and distinct. क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट इज अगेन वेरी राइट, ठीक है। सो दिस शोज दैट द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है दे डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। अब आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। अगेन तो यानी कि दिस इज शोन हियर when R is very large, interaction is different and कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आपको परेशानी की बात नहीं हो रही, they are not interacting with each other, ठीक है। So what will happen when interatomic spaces between them is reduced, ठीक है। अब है क्या, let's just suppose that the interatomic spaces starts to get reduced, आपकी interatomic spaces जो है reduce करना शुरू हुई और आप पहुंच गए for C less than R less than D, meaning that your interaction आप यहाँ कहीं हो, you are in this region, ठीक है। So from the graph we can see that there is no interaction between them, कोई interaction नहीं है, कोई splitting of energy levels नहीं होगी, but what will happen? What will happen when you reach point C? What will happen when you reach point C? This is your point C. तो जब आप point C पे पहुंच रहे हो, you can clearly see that there is some kind of interaction which is taking place between this energy levels 3p and 3s, ठीक है। आपको क्या देखने को मिल रहा है? द इंटरेक्शन इज विजिबल फॉर यू, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू 3s and 3p लेवल्स दे स्टार्ट टू चेंज। क्यों? बिकॉज जब आप पॉइंट सी पे पहुंच रहे हो वी कैन क्लियरली सी देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। एज अ रिजल्ट एनर्जी लेवल्स दैट फॉर 3s and 3p दे गो ऑन चेंजिंग, वहां पे कुछ ना कुछ चेंज आना शुरू हो रहा है, द चेंज इज अकरिंग, ठीक है। तो क्या है? दैट इट मींस द स्प्लिटिंग ऑफ दिस एनर्जी लेवल जो है आप वो होना शुरू होगी, द एनर्जी लेवल्स आर गेटिंग स्प्लिट, ठीक है। इनर शेल में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, बट द आउटर वैलेंस शेल दे स्टार्ट टू स्प्लिट, उनमें क्या है? स्प्लिटिंग होना शुरू हो रही है। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अगेन आगे चलते हैं अब इससे। व्हाट विल हैपन व्हेन आर लाइज बिटवीन बी एंड सी? मतलब अब आपका आर जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, पॉइंट सी पे क्या है? स्प्लिटिंग शुरू हो रही है। एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम वी कैन से दैट द स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, splitting begins to take place at which point? तो पॉइंट सी पे, दिस इज द पॉइंट सी वेयर द स्प्लिटिंग स्टार्ट्स टू हैपन, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस बिटवीन बी एंड सी? जब आप बी और सी के बीच में हो, द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3s and 3p लेवल दे गेट स्लाइटली चेंज्ड। एनर्जी लेवल्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, ठीक है। एनर्जी लेवल स्टार्ट्स टू गेट चेंज, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेपरेट 3p एंड 3s लेवल, अब आप पहले तो आपको सेपरेट 3p एंड 3s लेवल्स थे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेपरेट 3s एंड 3p लेवल वी गेट लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लेवल्स। हमारे पास क्या है? एक लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग शुरू हो गई है और आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो काफी क्लोज आना शुरू हो गए, आपको क्लोज एनर्जी लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, दिस स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू 3s एंड 3p लेवल रिड्यूसेस द एनर्जी गैप। पहले एनर्जी गैप कितना था इनके बीच में, कि इतनी एनर्जी गैप था आपके बीच में, ठीक है, एनर्जी गैप। बट हुआ क्या, द मोमेंट द स्प्लिटिंग स्टार्ट्स द एनर्जी गैप गोज ऑन डिक्रीजिंग। एनर्जी गैप क्या है, डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन आपकी आर की वैल्यू क्या है, अब आर क्या है, अब बी पे पहुंच गए, लेट अस अज्यूम अब आप पहुंच गए बी पे। तो बी पे जब हम देख रहे हैं तो आपकी स्प्लिटिंग किस तरह से हो चुकी है, इस तरह से हो चुकी है, योर एनर्जी लेवल्स हैव बीन मॉडिफाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हेन यू आर बिटवीन दिस डिस्टेंस, व्हेन यू आर एट आर इज इक्वल टू बी, जब आप बी पे हो तो आपको यहाँ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, व्हेन यू आर एट आर इज इक्वल टू बी पे हैं, जब आप आर इज इक्वल टू बी पे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हेन यू आर एट आर इज इक्वल टू बी, तब क्या होता है, when you are as r is equal to b, the energy gap between 3s and 3p they completely disappears। the energy gap क्या है, वो completely disappear कर गया है। ठीक है, in this situation you cannot distinguish कि 3p लेवल कौन सा है, 3s लेवल कौन सा, बिकॉज उनके एनर्जी लेवल जो है अब बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, इंटरमिक्स हो चुके हैं, उनके एनर्जी लेवल गैप जो है वो क्या है, वो गायब हो चुका है। सो एग्जामिनेशन कैन दे कैन आस्क यू एट विच पॉइंट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन 3s एंड 3p लेवल। सो इट इज पॉइंट बी एट विच वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन 3s एंड 3p लेवल्स पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन व्हेन r इज इक्वल टू a, जब r इज इक्वल टू a पे आप पहुंच रहे हो, यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ अ कंडक्शन बैंड, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स, वन बैंड बिकम्स कंडक्शन बैंड एंड वन बैंड बिकम्स द वैलेंस बैंड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दिस आर द पोजीशन, ठीक है, इसको आप बोलते हो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, सो लेट मी रिपीट दिस एंटायर सिनेरियो वंस अगेन। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स एंड द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग के बीच में हमने क्या किया है, ग्राफ को प्लॉट किया है। ठीक है, नाउ फ्रॉम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोहर्स थ्योरी वी नो दैट व्हेन टू एटम्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, जब दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तब क्या होता है, तब उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है। तो हमने क्या किया इनिशियली, और जब उनको नजदीक लेके आते हैं द इंटरेक्शन स्टार्ट्स, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, देयर एनर्जी लेवल्स क्या करते हैं, स्प्लिट करना शुरू हो जाता है। यू मस्ट हैव स्टडीड द टॉपिक ऑफ डिजेनरेसी इन योर केमिस्ट्री, तो वही टॉपिक आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द दिस इंटरेक्शन ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इफेक्टेड, नॉट द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट होते हैं, आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सो वी हैव प्लॉटेड दिस एनर्जी लेवल डायग्राम विद द इंटरेक्शन विद द इंटरएटॉमिक स्पेस, इसके साथ हमने उसको प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इंटरेक्शन दिस एनर्जी लेवल्स 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 को हमने प्लॉट किया, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन, वी आर डिस्कसिंग दिस डायग्राम फॉर सिलिकॉन, द सेम डायग्राम कैन बी प्लॉटेड फॉर जर्मेनियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ सिलिकॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3s2 एंड 3p2, these are your valence electrons and remaining are the inner electrons। तो when the interaction starts to occur, when the जब दो एटम्स को मैं साथ में लेके आता हूं and when the interaction between them starts to occur, जब ये सिचुएशन आपके पास आती है, then you realize that these electrons will not be affected। आप उनको कितना मर्जी नजदीक ले आओ, these electrons will not be affected, these energy levels will not be affected। the only differences they will start to occur will be in the case of 3p2 and 3s2। सिर्फ आपके जो केसेस का डिफरेंस आना शुरू होगा वो सिर्फ 3p2 and 3s2 में आना को शुरू होगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड होता क्या है। ठीक है, इन द फर्स्ट केस वी ट्राई टू स्टडी कि जब उनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन देम, सॉरी नॉट इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, व्हेन टू एटम्स आर इन इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, देन दे कैन नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन ईच एटम विल बिहेव लाइक एन इंडिविजुअली फ्री एटम। वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कर पाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एंड व्हेन दे आर एबल टू मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी, तो उस वजह से क्या है कि उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनमें के जो एक हर एटम जो है एक फ्री एटम की तरह बिहेव कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट उनकी एनर्जी लेवल्स में आपको कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आते, उनमें कोई स्प्लिटिंग आपको ऑब्जर्व नहीं होती है। एंड सेम इज द केस जब आप यहाँ कहीं ऑब्जर्व करते हो, जब आप यहाँ कहीं रहते हो। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू रीच एट पॉइंट सी, जैसे द मोमेंट यू रीच द पॉइंट सी, याद रखिएगा, द मोमेंट यू रीच द पॉइंट सी द स्प्लिटिंग स्टार्ट्स टू हैपन। स्प्लिटिंग, आपके इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, आपकी स्प्लिटिंग जो होती है सिस्टम में स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड जब आप
सी और बी के बीच में पहुंचते हो, जब आप सी और बी के बीच में पहुंचते हो तब क्या होता है, जब आप सी और बी के बीच में पहुंचते हो आपकी इंटरेक्शन जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, योर इंटरेक्शन जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल 3s और 3p यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3s एंड 3p। आपके एनर्जी लेवल स्प्लिट कर चुके हैं, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि अब आपका 3s कौन सा है, आपका 3p कौन सा है। ठीक है, क्लियर हो गई थी सी बात। ठीक है, इनके बीच का एनर्जी गैप जो होता है वो क्या है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड जब आपकी इंटरटॉमिक स्पेसिंग बी पे है तब तो आप बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सो इन द एग्जामिनेशन ही कैन आस्क यू कि एट किस पॉइंट पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम at which point the distinction between 3s and 3p level disappears, that disappears at point b। ठीक है, और जैसे आप बी के आगे जाते हो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड, वन इज द कंडक्शन बैंड एंड वन इज वैलेंस बैंड। इस तरह से आपकी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स है, लेट मी राइट दोस मेन पॉइंट्स फॉर यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट हैपनिंग, सो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, तो बाकी चीजें तो हमने लिख ली थी, नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक टॉपिक। ठीक है, नाउ this is your case number 1. Case number 1 is when R is equal to D which is very greater than A। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं A is your nothing but A is your distance between, or rather I should say this is your crystal lattice spacing, crystal lattice spacing। ठीक है, इसको आप ऐसे रखिए। ठीक है, एंड R is nothing but the basic distance, कितना क्यों डिस्टेंस है। ठीक है, इन द फर्स्ट केस व्हेन R is very large than A, when R is very large than A, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, in this situation you have to be very careful। यहाँ पे क्या होता है, there is no interatomic interaction। यहाँ पे क्या है, no interatomic interaction, यहाँ पे कोई भी interatomic interaction जो होती है वो नहीं होती है, there is no interatomic interaction। ठीक है, एनर्जी लेवल्स आर शार्प डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट, एनर्जी levels are sharp, discrete and distinct। ठीक है, क्लियर होगी ना, एनर्जी लेवल्स आर शार्प, डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट, इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आई होप दिस इज समथिंग, दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, दिस इज समथिंग, इतना आपके लिए काफी है कि यहाँ पे कोई भी चीजें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे चीजें बिल्कुल सेम टू सेम रहती है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, केस नंबर 2। ठीक है, इन दिस केस व्हेन C R is lies between C and R, C and D के बीच में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल हैपन, अगेन नथिंग इज हैपनिंग, no visible splitting is observed, no visible splitting is observed, no visible splitting is observed। ठीक है, now let's just move on to the case number 3। case number 3 is when R is equal to C, when R is equal to C, R is your interatomic spacing। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, R is your interatomic spacing, R is equal to interatomic spacing। ठीक है, क्लियर होगी। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन R विल बी इक्वल टू C, जब आपके R इज इक्वल टू C होता है, इन दैट केस व्हाट हैपन इज interaction, if this is the case then what happen is the interaction between
neighboring the interaction between neighboring silicon atoms becomes appreciable. ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्प्लिटिंग स्टार्ट्स टू हैपन. स्प्लिटिंग स्टार्ट्स, तो यानी कि पेपर में पूछेगा एट विच पॉइंट द स्प्लिटिंग स्टार्ट्स. स्प्लिटिंग स्टार्ट्स एट पॉइंट सी. जैसे आप सी पे पहुंच तो स्प्लिटिंग जो होती है शुरू हो जाती है. इनर शेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, स्प्लिटिंग स्टार्ट्स एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि इनर शेल्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, केस नंबर 4. What will happen when B is less than R less than C? जब आप उनके दोनों के बीच में पहुंचते हो, then what happens? If this is the case, when you are dealing with this point, तब इसमें होता क्या है? Energy levels are slightly changed. Energy levels are slightly. Energy levels are slightly changed. As we can already see this thing in the diagram, energy level जो change कर जाते हैं. ठीक है, instead of, इस बात का मतलब क्या है कि then instead of 3s और 3p levels, we get large number of closely packed levels. We get large number of closely packed levels. ठीक है, इन चीजों को पता होना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. ठीक है, एनर्जी गैप रिड्यूसेस. एनर्जी गैप क्या करेगा? दैट डिक्रीजेस. ठीक है, क्लियर हो गई थी बात. ठीक है, इन द केस नंबर 5 व्हाट विल हैपन? केस 5 व्हाट विल हैपन व्हेन R is equal to B greater than A. मतलब जब आप पॉइंट B पे पहुंच चुके, the moment you reach at point B, the moment when you reach at point B, the 3s and 3p level completely disappear. 3s and 3p they completely disappear. They disappear. इस बात का मतलब क्या है कि that we cannot distinguish. This means that we cannot distinguish. This means that we cannot distinguish between electrons belonging to 3s and 3p levels. मतलब हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल से आया, 3s से आया, 3p से आया. This is something which happens. Okay, ठीक है. So this means that we can say that 4n shells are empty while 4n are filled. Because how many आपके पास कितने ऑर्बिटल्स थे? We had 8 energy levels, out of which 4n are filled and 4n are empty. ठीक है, and finally is the case number 6. So what we did is we differentiated this diagram. We divided this diagram into 6 different parts. में हमने इसको divide किया. ठीक है, so ये चीज हो गई. ठीक है, तो case number 6 is when R is equal to A. When R is equal to A. When this is the case, when R is equal to A, we have the formation of conduction band. We have the formation of conduction band and we have the formation of valence band. मतलब 4n लेवल जो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, 4n चीज में जाएंगे, वैलेंस बैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, एंड दिस इज कंप्लीटली फिल्ड and this is at lower level. ठीक है, similarly conduction band is unfilled. ठीक है, and it is at a upper level and कितने होते हैं? 4n. सब चीजें वहां पे चली जाती है. ठीक है, and these are separated by
forbidden energy or conduction. These are different. Divided by. These are divided by energy gap. ठीक है, this is how we can say that we have the formation of conduction band and the valence band. So the examination need can ask you the conduction band and the valence band are formed at what point. तो R is equal to A पे आपके पास conduction band and valence band की formation आपको देखने को मिलती है. Another type of question can be asked you. They can simply ask you to name each and every point, or they can ask you that which of the following diagram is correct. So you should always remember the conduction band lies at a upper level while the valence band जो होता है वो नीचे वाले लेवल पे लाई करता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू स्टडी दिस थिंग. ठीक है, और बैलेंस बैंड मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस बैंड इज अ completely filled band होता है which can be partially filled, this can be completely filled. ठीक है, and this band is never empty. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग हियर दैट द बैलेंस बैंड, यहाँ पे मैं आपको बैलेंस बैंड में आपको एक बात और लिख देता हूँ. ठीक है, दैट द बैलेंस बैंड इज completely filled or partially filled but इट्स नेवर एम्प्टी. ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता है. ठीक है, कंडक्शन कैन बी एम्प्टी. ठीक है, कंडक्शन बैंड कैन बी एक्टिव बट वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एक्टिव. सो इन द एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू which of the following statements regarding conduction band and valence band is correct. So you should always remember that the valence band can never be empty while the conduction band can be empty at 0 Kelvin. For example, conduction band is empty at 0 Kelvin. ठीक है, सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कवर होता है. दिस वाज माय टारगेट फॉर टुडे, क्योंकि मुझे ये चीज आपको समझानी थी. एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि दिस टॉपिक इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वी हैड टू स्टडी दिस डायग्राम. कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ाया जाता, बट आई एम टेलिंग यू दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जितना मैं दिन में करवाता हूँ आपको उतना ही करना है. प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छे से करिएगा, इन टॉपिक्स को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से करिएगा. ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर विल हार्डली टेक 3 to 4 days और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. चैप्टर उसका आपको सिर्फ ऑप्टिक्स बचेगा एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपका चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो जितना मैं करवा रहा हूँ आप उतना ही कीजिए. जंप मत कीजिएगा कि आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप कहें कि जितना करवाया है आपको, अगर आपको ये चीजें ढंग से नहीं आती है वो दिक्कत होगी. ठीक है, आप ये मत स्किप करिएगा कि आपने इतना ही करना है. नहीं नहीं नहीं, हम आगे करेंगे, आगे नहीं करवाया, आगे वाला टॉपिक हम कल शुरू करेंगे. ठीक है, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग. ठीक है, सो ऑन दैट नोट हम आज का टॉपिक आज यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो आई वुड लाइक दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो एंड बाय बाय. टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.